So how are you all? Your previous class is ended? Yes, ma'am. Good afternoon. Fine, ma'am. Afternoon. So slowly all will join. है ना? अभी टाइम नहीं हुआ है. 3 मिनट बाकी है तो we will wait for 3 minutes. है ना? We start sharp at 1:45 minutes. Okay? Okay, ma'am. ओके मैम। मैम हमारे एग्जाम कब है? हाँ, कौन पूछा ये? मैम मैं हिना। हिना. हिना इवन आई डोंट नो कब है, लेकिन आपकी एग्जाम जब भी होगी ना, हम आपको 10 या 15 दिन पहले बता देंगे. ओके? अच्छा, तो हमारी मीट सेम भी होगी ना मैम? हाँ, मिड सेम भी होगी. वो कैसे होंगी हम आपको बता देंगे, या कि ना आपको पहले से बताया जाएगा कि आपकी एग्जाम कब है. और ये वेनसडे यू ऑल विल प्रेजेंट. हाँ, डोंट मिस द क्लास बिकॉज वेनसडे आई एम गोइंग टू ओरिएंट यू अबाउट योर प्रैक्टिकल वर्क 25 marks. ओके मैम। ओके मैम। मैम मैम Yes. वेनसडे को हाँ, मैम यस वेनसडे मिली. को I have some interview, so I don't know if I'll be able to attend this class or not. Okay, then you get the information from your friend that what is being oriented. Okay, Millie? Okay, no problem. Okay. Even though I will put the manual of practical works in our, I will upload it. Okay. Okay. माइक्रोफोन ऑन है. Request, huh? Please mute your microphone, huh? And if possible, make your video on. So I will be able to like interact more with you. हाँ, वृत्ति ने ऑन किया. अच्छा लगता है ना जब स्टूडेंट ऑन करते हैं. रिद्धि, शीतल, कृष्णा. कृष्णा, where are you? You are not in a. कृष्णा, are you outside? मास्क पहना है आपने? मिली. अच्छा लगता है. चलो स्टूडेंट 80 स्टूडेंट हो गए हैं वैसे तो. हर रोज कितने ज्वाइन करते हैं आप अप्रोक्सीमेटली? 96 मैम, अभी लास्ट टाइम पे 99 96 थे. 10-15 और आएंगे. So in last lecture, what we had discussed? Let's begin slowly with the last lecture, recalling last lecture.
Last Friday we discussed about याद करो थोड़ा थोड़ा, क्या बकबक कर रही थी मैं? Assessment for learning. Okay, assessment for learning, है ना? We discussed the concept of the assessment for learning. Okay, what else we discuss? Ma'am, then we Maybe the discuss the process 3 of- steps, like where the student is going, then where is the student now, and how can the learner be there. So the 3 हाँ. phases. है ना? We learn that when we are supposed to do the assessment for learning, we have to keep these 3 things in our mind, है ना? That we should make aware our student about the learning objectives, है ना? They should be able to know that where is their position in the learning, and they should can understand that how they can reach to achieve that goal. So that is the main 3 things in the assessment for learning. I think यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, है ना? Then I showed you the 5 steps and process of assessment for learning, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What was that? Ma'am, it was questioning, then Okay. feedback, students Feedback. understanding, then peer assessment, and final summative assessment. Okay, final summative assessment, है ना? And then I told you that at the last, even assessment for learning is closely related with which type of evaluation, formative or summative? Formative, है ना? Formative. But even though at the end of the assessment for learning, we should use the result of summative assessment for formative purpose, है ना? That at the last I think this much we have discussed, है ना? और आज क्या डिस्कस करने वाले थे हम? मैंने बोला था Assessment of learning. Ma'am, peer assessment. Yes, peer assessment. Who said this? Ma'am, Halisa. हाँ, हलीसा, है ना? हम असेसमेंट फॉर लर्निंग ही डिस्कस कर रहे हैं मिली, सिंस थ्री क्लासेस, है ना? बट टुडे स्पेशली वी डिस्कस अबाउट द peer assessment. Okay, now when I say that peer assessment, again the 2 words are involved in this term. Which are they? Peer and assessment, है ना? You people are now aware of that what is assessment, है ना? And even peer is not the new word for you. So try to define from your side that what do you mean by the peer assessment? Tell me, how many of you know that peer means what? Classmates. Classmates. है ना? Classmates. Colleague. Colleague या classmate, है ना? जब हम अपने एज वाले। हाँ, so that means एक क्लास में जो एक साथ पढ़ रहे हैं, they are called as the peer, है ना? The classmates are called as the peer, है ना? तो उसको हम peer बोलते हैं. Now try to link this word assessment with the peer. क्या click होता है? Ma'am, many a times it happens that we ask our friends for some kind of feedback. Okay, Ma'am, Subhita. which also helps in facilitating learning processes. Okay. So Okay. that way, yes, ma'am, it can be said peer assessment. Okay, that is your understanding, Subeda. Actually, what's your name? Your name is written here like Subeda. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is my dad's name. My name is Shobhita. Sobita. हाँ. So Yes, yes, you are right, Sobita. Can you explain with one example? आप अपने experience से बोल रहे हो ना कि many a times we used to give the feedback to our friends and the peer. Can you Yes, elaborate it with taking one example? Because ma'am, this is what maybe direct. yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Suppose after 10th standard, we have to choose subjects. So we ask that which subject do you prefer or why? So you will be taking this discipline. That way we ask
our Yes, peers Subhita. to give Okay. some yes ma'am, advice or a suggestion like that, so that Okay. we can Okay. understand. Yes Okay, ma'am. Subhita, that's your understanding of peer assessment, है ना? So that is in a very informal way. This is Yes not a ma'am. in a strict formal way, but when you are time, what happened? We are in a class, and you all know that peer are closely related with each other. They know each other very well, है ना? And many a times they used to give the feedback to the friends. Okay. Now tell me, how Yes. many of you sit together and study together during your school days? Ma'am, on single bench we sit more or maximum three, two or maximum three people. Yes. That Okay. way. हाँ, that way, है ना? But like Major interaction takes हाँ, place between we. Yeah. हाँ, तीन के बीच होता था. Or what about in Yes. a recess time? What happened? Sorry Group ma'am. ma'am. Pura group. In group. Yes ग्रुप ma'am. पे, है ना? कभी एग्जाम नजदीक आती हो और कभी ग्रुप में बैठ के डिस्कस करते हो एक दूसरे से? Yes, ma'am. हाँ मैम. Yes ma'am. ये कौन सा Yes. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हो? हाँ, है ना? ओके, ऐसा तो why we do these things, because peer के साथ हम जरा ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तो ये सारी चीजें that is very informally, है ना? But in a formal way, if I want to know that, है ना, कि peer assessment क्या है, this is whatever you are explaining, that is the relationship which the peers are sharing with each other, है ना, as a classmate or as a friend. Am I right or wrong? Yes ma'am. You are right. है ना? Now this is the relation we are, so why don't you use that relations, है ना, and that bonding to facilitate the learning in our day to day life? Can we do that? Yes. है ना? है ना? तो जब हम Yes, ma'am. असेसमेंट की बात करते हैं, नाउ अब जरा ध्यान से सुनो, जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो वी आर असेसिंग अवर स्टूडेंट्स, है ना, अबाउट देयर लर्निंग्स. तो असेसमेंट का डेफिनेशन आपको पता है, टेस्टिंग का पता है, इवैल्यूएशन का पता है. नाउ अभी बात हो रही है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो आपने क्लियरली पढ़ लिया, है ना, कि बच्चों को, जैसे कि अभी मैंने पहला ही प्रश्न पूछा तो संस्कृति, है ना, संस्कृति ने कृति मैम. तुरंत हाँ, श्रुति ने तुरंत आंसर दिया कि 3 थिंग्स मैम हमने पढ़ाई थी, जिसमें पहली क्या थी? वेयर द स्टूडेंट Where इज the गोइंग, student is going. है ना, इन विच वी आर एक्चुअली एक्सप्लेनिंग देम द ऑब्जेक्टिव्स, है कि नहीं? वी आर एक्सप्लेनिंग देम द ऑब्जेक्टिव्स. अभी जब आप ये पूरी प्रोसेस करते हैं असेसमेंट में, जब आप peer assessment को as a part कर रहे हैं, तो here we are assessing which role to the peer. I am trying to get the answer of this question. In peer assessment, what kind of role is being assessed to peer? मैम मुझे एक बात पूछनी है, मतलब आई हैव अ कंफ्यूजन. जब भी हम जॉब करते हैं तो उसमें एक चीज होती है कि हम खुद बोलेंगे कि हाँ मैंने ये इम्प्रूव किया, ये मेरा बैक पॉइंट था, उस हिसाब से हमें अप्रेजल मिलता है. फिर आता है कलिक असेसमेंट, तो उसमें ये होता है कि अ बॉस आस्क्स टू एवरी पर्सन Yes. आपने इस इंसान के साथ आप काम कर रहे हो, तो आपको Yes. क्या नजर आ रहा है, आपको क्या नहीं नजर आ रहा है. तो अगर Yes. पीयर असेसमेंट और ये अप्रेजल, ये दोनों सेम है क्या मैम? दोनों अलग है. See, मतलब Mariam, आई एम टेलिंग अबाउट द मेन थिंग. Yes, Mariam, you are in a right track, but you are giving the example of the job where we are assessed. And we all know that at the job place, the work or the performance of the employee is being assessed. There are different way of this assessment. One is self appraisal, है ना, जिसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे as a point of self assessment, है ना. Now let me share my screen. Is my screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See,
In a फिर last मैम lecture, peer assessment मतलब अपना कॉलीग असेसमेंट होता है, फिर एक होता है कि मैं टीचर उसी एंड पे कॉलीग मैं दोनों उसी पे आती असेसमेंट हूँ। होता है। मरियम, मैं उसी पे आती हूँ क्योंकि यू हैव टेकन द राइट ट्रैक। देखो, इन द लास्ट lecture I discussed that students become more independent in the learning, taking part in the peer assessment and self assessment. Here we are assessing what students learning, है ना, we are facilitate them for the learning. Now what example you are giving, Mariam, that is the workplace example, but we can correlate that example in our student assessment teaching learning process. As you said that, Mariam, ki at the every year, at the employer, being an employee, 6 we are month supposed to give our own assessment, है ना, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया. That falls under which category? Peer assessment or self assessment? This is the question for all. Self assessment. Self assessment. Self assessment, है ना, that the person herself or himself assessing the work which he or she has done throughout the year. Am I right, Mariam? यस मैम। है ना, वो होता है वर्क प्लेस में. So now try to relate that thing with the teaching learning process. Can't the student assess their own learning? Yes, they can assess. They can assess. So that comes in the self-assessment category. Now, what other example you can many a time employer, the other way of assessing the performance of the employee और उसका assessment करने के लिए, what the employer take that they are taking the review from their colleagues, है ना, कि जो बोल रहा है वो सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, yes, है ना, so that they are doing the peer assessment, है ना, Yes. जैसे कि if I am in a production department, है ना, so those who are working with me in the production department, they are in a capacity to tell me about me, है कि नहीं? So this is happening even in the companies, even in the many workplace where the assessment is also done by the peers or the colleagues. कहाँ पे हम we are use the word colleagues, है ना, so that falls under the category of peer assessment. Now both is different, है ना, but आपको concept समझ में आया? My question was that कि मरियम ने मुझे पहले ही एग्जांपल दिया, उससे पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि peer assessment, when we use this two term peer assessment, what kind of role we are assigning to our students? What kind of role we are assigning to our students? They also take the responsibility. Yes, Mariam, in a right track. They are Ma'am, we also trying to taking learn from each other's हाँ. experience. Wait, खुद की one तो by one. responsibility Wait, लेते हैं one by साथ one. में One by दोस्तों one. One by one. Mariam, yes, खुद very correct. Through peer assessment, we are enabling our student to take a responsibility. उसके बाद I think श्रुति ने कुछ बोला. What you are trying to say, Shruti? Ma'am, this is Shobita. Ma'am, Ma'am, I Shobita. told that Sobita. Yes. yes, ma'am. Peer are trying to learn from each other's experience. Okay. Okay. उस पे बात पे आते हूँ, है ना? Yes. लेकिन यहाँ पे you all are focusing on the assessment, है ना? Mariam said that we are enabling them to taking the responsibility. What kind of responsibility they are taking? Teaching Ma'am, is they मैम are हम observing. क्लास में किसी को Wait. मॉनिटर बनाते हैं ऐसा? No, तो उससे assessment हो जाएगा, खुश. बट मैम हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं ना क्लास को मॉनिटर करने की. पर वो एक इंसान ले रहा है, यहाँ पे पीयर की बात हो रही है, मतलब हाँ, very correct. खुश, तू जो बोल रहा है ना कि क्लास में मॉनिटर होता है, this is the scenario of every school. They have the monitor. What exactly they are doing in the school? In the absence of teacher, they are writing the name of the students, है ना, जो misbehave करते हैं, है ना. I am not talking about that responsibility. So that is why when I use the word peer assessment, don't forget the assessment part.
So here we are doing the responsibility of what? Teaching. Responsibility of the behavior, of the learning, of taking No. care of the people. Teaching or They are learning. assessing कि मेरे फ्रेंड को ये आता है, इसको ये नहीं आता, तो Yes, मुझे ये आता है तो Millie. मैं सिखाती हूँ. Yes, Millie. है ना? Here we are also enabling them to assess their friend. In a way the teacher are assessing. जैसे कि टीचर असेसमेंट करते हैं अपने स्टूडेंट का, जैसे कि डे टू डे कन्वर्सेशन से मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चों का ये लर्निंग हो रहा है, ये स्टूडेंट को ये नहीं आ रहा है, ये स्टूडेंट ये समझ रहा है. इन अ वे वी आर ऑल्सो एनेबलिंग आवर like the students to take a responsibility as a assessor, as a evaluator. May I make it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, तो हेलो हम- मैम. है ना? Yes, wait. आपका क्वेरी मैं बाद में हाँ, बोलूंगी. hello, पहले ma'am. इतना- wait. Let me first discuss these things. As I said that what kind of responsibility we are sharing with them, that is the responsibility of as a assessor. So they are also like a teacher is assessing his or her student, in the same way peer are also assessing their friend, and then after given, like teacher is after assessing, what we provide to us assessment for learning में major part किसका होता है? फीडबैक, है ना? जैसे टीचर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, the same way peers are also providing the feedback to their friends to whom they have assessed. है ना? अभी कोई पूछना चाहता था, पूछो अभी. हाँ हेलो मैम, वैभवी हियर. हाँ वैभवी. हाँ मैम, स्कूल में हमारे साथ एक्टिविटी हुई थी ये पीयर असेसमेंट की. हाँ बोलो. व्हेन आई वाज इन 5th क्लास. तो क्या हम Yes. इसे बोल सकते हैं? वहाँ पे ऐसा Can हुआ you था कि please explain? डिक्टेशन. Can you please हाँ. explain that activity? हाँ मैम, वो एक्टिविटी ऐसी थी कि हम सबको 10 वर्ड्स दिए गए थे, लाइक डिक्टेशन Okay. वर्ड्स की तरह. Okay. और फिर Okay. हम लोगों ने एक्सचेंज कर दिया था एक दूसरों के साथ हमारी नोटबुक्स. और Okay. फिर मैम ने खुद बोला कि आप जिन्होंने भी एक्सचेंज किया है वो मतलब चेक करे कि कितने रॉन्ग है हमारे वर्ड्स और कितने राइट है. तो क्या हम इसे बोल सकते हैं पीयर असेसमेंट? Vaibhavi, yes, this is also one kind of peer assessment. Now I want to know from you, Vaibhavi, कि हाँ. सिर्फ हमने exchange करवाई थी answer sheet. How did you assess the questions, answers of other? मतलब जो मेरे बाजू में जो मतलब कोई था मतलब क्लासमेट, तो उसकी बुक मेरे पास थी, मेरी बुक किसी और के पास हाँ, थी. that we और know. मैंने फिर See, that हाँ, we know. okay. Actually, we are also doing the same thing. But how did you assess? मैम I am मैम ने asking the process हाँ, part. ओके. मैम ने सारे बोर्ड्स पे राइट वर्ड्स लिख दिए थे कि जो 10 वर्ड्स दिए थे वो, और वहां से मतलब हमें आंसर शीट जैसा प्रोवाइड किया गया था कि ये Okay. मेन है और यहाँ से आपको देख के बताना है. Yes. Now, yes, this is also one kind of peer assessment. Here, now, everyone have listened the Vaibhavi, है ना? What activity her madam did in the 5th standard? She took a test, है ना? फिर exchange of answer sheet. उसके बाद का portion very important. बच्चे ऐसा तो assess नहीं कर देंगे ना? What her madam has provided? The evaluation criteria, है ना? वो बोल रही है कि आंसर शीट दिया था, but that's the actually the evaluation criteria. So when we are enabling our student to assess their peer, we are also giving the prefix criteria of evaluating that particular task, है ना? And taking into that criteria into consideration, actually peer are assessing their friends, है ना? थोड़ा उसको अभी मैं पीपीटी वापस से शेयर करती हूँ, तो आप थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. Is my PPT is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what Vaibhavi has said, see, and what we had discussed up to. So, peer assessment is the assessment of students' work by other students of equal status. है ना? जैसे वैभवी ने बोला, है ना? हम यहाँ पे क्या करते हैं पीयर असेसमेंट में, स्टूडेंट का जो भी वर्क है, जो भी लर्निंग है, हु इज असेसिंग दिस?
the other peers. They are sharing the equal status, है ना? That means, what do you mean by the equal status? ऐसा नहीं है peer assessment के 7वीं बच्चे का assessment 10वीं वाला बच्चा करेंगे. Is it so? मतलब सेम No, क्लास ma'am. में होनी चाहिए ना मैम. सेम क्लास स्टैंडर्डाइज्ड मैडम मटेरियल. Yes, सेम है ना? क्लास Same class. So peer assessment is the assessment of students' work by the students of equal status. It also involves student taking the responsibility. So here we are enabling the students the responsibility for assessing the work of their peers. Against what? How they are assessing the work? Against the set assessment criteria. As Vaibhavi has said that what her madam did, she provided the answer key and must be like आपको कुछ instruction भी दिया होगा. वैभवी? हाँ हाँ मैम दिया ना? था कि जैसे हाँ कि कि एक पहला वर्ड राइट है तो 1 मार्क्स. एक 1 marks है ना? So that हाँ. is the preset criteria है ना? So when we are doing that, as I am already discussed that peer assessment में major part क्या होता है? Students are taking the responsibility for assessment, and how they will do this assessment with the set assessment criteria. So in a way, learner can therefore be engaged in providing feedback to their peers, है ना? तो जो भी उन्होंने चेक किया उसके आधार पे वो अपने स्टूडेंट को फीडबैक दे सकते हैं. सो फीडबैक इज आल्सो अगेन हियर इन peer assessment, है ना? तो जब हम assessment for learning की बात करते हैं तो हमने देखा था कि teacher provides the feedback, है ना? So in peer assessment also the learners are providing the feedback, है ना? So peer assessment, or which is also known as peer review, which provides a structural learning process, है ना? This is also one kind of learning process for student to critique and provide feedback to each other on their work. Okay, so in a way students are also enacting as a assessor, as I told you कि students वो assessor का role play कर रहे हैं, and to gain an opportunity to better understanding assessment criteria, है ना? अभी याद करो, मैं मेरे लास्ट क्लास में और उससे पहले क्लास में भी मैंने बोला था कि assessment for learning is the joint venture, है ना? It's not the solely responsibility of the teacher. In assessment of learning, we are also engaging our student. So how we are engaging? Not only learning process, but we are also engaging them in the assessment process. Clear up to this? Yes, So, ma'am. if Yes, ma'am. if I want to do peer assessment, being a teacher, what should I have to do? What should I have to do? First of all, ma'am, I have to set the criteria and Very then correct. assign the responsibility. है ना? मैंने पहले टीचर के तौर पे हमको क्या करना पड़ेगा? असेसमेंट क्राइटेरिया तो बाद में आएगा, उससे पहले भी क्या करेंगे आप? What will you do? सबने वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? पहले एग्जाम लेंगे फिर क्राइटेरिया देंगे ना. पहले तो एग्जाम लेंगे. एग्जाम लेना है ना, लेकिन ज्यादातर असेसमेंट फॉर लर्निंग की एग्जाम कैसी होती है? फॉर्मेटिव टाइप में. इट ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट? No, ma'am. No, ma'am. Question. प्रैक्टिकल वर्क, ग्रुप एक्टिविटी, प्रोजेक्ट वर्क. सो सबसे पहले being a teacher we need to see that कि what kind of task we can assign to our student so that we can do the peer assessment. So first of all we have to plan the activity, है ना? We have to plan the task. जैसे कि peer assessment हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सोचो, आप अपने सब्जेक्ट में सोचो. जैसे हमें अभी इंग्लिश का वो असाइनमेंट दिया हुआ है कि वी हैव टू मेक टीम्स.
and Okay. we also have to write our personal experience and all in that task. तो Okay, हम okay. ग्रुप पे शेयर करते हैं एंड देन पीपल गिव देयर फीडबैक कि अच्छा ये Yes, तुमने ठीक लिखा है, ये नहीं लिखा है, yes. ग्रामेटिकल एरर्स है. Very correct. Very correct. उसने बोला ये. Please say your name at least so I मिली मैम. get to know. मिली, हाँ मिली. Very correct. जैसे कि अभी आपको असाइनमेंट मिला होगा ग्रुप में, है ना? तो अभी उसका ये जो आपने किया ना वो इनफॉर्मली आप पीयर असेसमेंट कर रहे हो, है ना? लेकिन जैसे कि आप एक दूसरे को हम पहले से ही टीचर आपको बोल दे, यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन क्राइटेरिया नहीं बोला होगा, बोला है? मिली? नहीं. हाँ, नहीं. but even though you are giving feedback to each other, so that is the main crux of the assessment for learning. Okay, in a way students are doing the assessment of each other, so why not to like bring this in a very formal way, है ना? So यही एक्टिविटी जो मिली ने जो एग्जांपल दिया आपको, जो असाइनमेंट मिला है कि बहुत सारी ऐसी ग्रुप असाइनमेंट की एक्टिविटी होती है, सो टीचर कैन टेक अ कॉल कि and decide the activities कि yes in this activity I can do the peer assessment. So when this teacher is explaining the assignment to the students, at the same time teacher has to say that this is one kind of peer assessment. Teacher at the same time are explaining the predetermined evaluation criteria, है ना, to with the students, and teacher will tell them how to assess each other. Clear है ना? So सबसे पहले peer assessment में क्या होता है? Teacher has to set the activity, has to plan the activity, has to design the activity task in which he or she wants to do the peer assessment. Then जैसे अभी आपने बोला कि आपको evaluation criteria decide करना पड़ेगा, है ना? तो जैसे ज्यादातर ऐसे असाइनमेंट होते हैं, उसके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया डिसाइड करो, देन यू नीड टू शेयर इट विथ योर स्टूडेंट, है ना? यू नीड टू एक्सप्लेन देम द व्हाट रोल दे आर गोइंग टू परफॉर्म नाउ. सो वो असाइनमेंट तो करेंगे, सो दे आर आल्सो परफॉर्मिंग द रोल ऑफ टीचर, एट द सेम टाइम दे आर आल्सो परफॉर्मिंग द रोल ऑफ द असेसर, है ना? है ना? क्लियर अप टू दिस? इज देयर एनी डाउट? मैम नाम बोलो, हेलो नाम प्लीज. हाँ मैम, रिंकी शुक्ला. हाँ यस रिंकी. मैम अगर हमने जो टास्क दिया है वो ओरल है फॉर एग्जांपल, यस यस, और हमने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी रखा है, यस, बट जरूरी है कि पीयर्स का जो असेसमेंट हो वो फेयर हो. फेयर मींस? हाँ ये डाउट था मुझे भी. फेयर मींस कि मैम दे- वहाँ बॉन्डिंग का भी थोड़ा रोल होगा ना बच्चों में. ओके लेट मी. if I'm आपका डाउट assessing क्या my है? friend, then I'll give more marks to her, and Yes, ma'am. if there is someone else की जो Okay, मेरा okay, friend ही है okay, ना. okay, I got it. I got it. Ma'am, I Now want to recall, tell one recall. thing. Wait. I got it. What's your doubt? Recall one thing. What's the basic purpose of formative assessment and assessment for learning? It's provide grading to them. Yes, ma'am. Huh? No, Formative. no, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. No. Submitting Why? my grading. Why you assess each and every assessment with the grading only? These are the misconception. वो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना? Because in each and every assessment, formative or assessment for learning में, the major role is not grading. उसके लिए तो हम कौन सा असाइनमेंट करते हैं? समेटिव है हमारे पास, Yes, है ना? ma'am. अभी तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का मेजर रोल है कि बच्चों को लर्निंग हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं. क्लियर? तो अभी ये डाउट तो आता ही नहीं है कि ये मेरी फ्रेंड है तो मैं उसको ये ज्यादा मार्क दे दूं. दिस इज नॉट द सिनेरियो. ये मिसकंसेप्शन है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रुप एक्टिविटी दी है मेरे क्लास में, है ना? एंड Yes, आफ्टर टीचिंग 1 or 2 points आई हैव लाइक मेक अ ग्रुप, और मैंने कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया है ना? और प्रोजेक्ट वर्क में आई वांट टू चेक दैट उनको कितना समझ में आया है ना? So simultaneously I am using the peer assessment also.
कि ये प्रोजेक्ट वर्क में मैं आपको कैसे असेस करने वाली हूँ। बट मैम Because टीचर है अगर तो उसे पता है, टीचर को पता होता है कि उसको क्या चाहिए बच्चे से आउटकम, बट पियर्स को पता नहीं होता। टीचर जो क्राइटेरिया रखेगी, जो पियर्स होंगे वो उस बेसिस पे हमें असेस करेंगे। हाँ, सी नाउ यू आर ऑन अ राइट ट्रैक रिंकी, कि टीचर को पता है कि उनको क्या आउटकम चाहिए, स्टूडेंट्स हाँ को नहीं पता है ना। तो इसीलिए मेरा वही। लास्ट क्लास याद करो, मैंने क्या बोला था, असेसमेंट फॉर लर्निंग में 3 चीजें इज इम्पोर्टेंट, where they are going, where they are now, and how they can reach there. So why we are not getting the better result? Because our students themselves are not aware of the learning outcomes. उनको पता ही नहीं है कि क्या लर्निंग आउटकम्स होने वाला है, उनको पता ही नहीं है कि कौन से क्राइटेरिया पे उनको जज किया जा रहा है. एंड व्हेन वी आर लाइक हियर इन अ peer assessment, now let me share my screen again. ये जो पार्ट है ना, now try to understand these things. Peer assessment review a structured learning process for student to critique and provide feedback to each other on their work. Okay? ये काम अगर हमें करवाना है रिंकी और बाकी सब सुनो Yes, ma'am. ध्यान से, तो we are like empowering them so they can also understand the assessment process. They can also understand the evaluation criteria. वो भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया समझ सके और उसके आधार पे उनका एंगेजमेंट ज्यादा हो. See, this kind of peer assessment transfer some ownership of the assessment process to the students. हम वही कर रहे हैं ना, हम स्टूडेंट्स Yes, को ma'am. क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप ऑफ असेसमेंट जो टीचर के पास होता है वो हम अपने स्टूडेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं. इससे क्या होगा, thereby potentially increase their motivation and engagement. अभी उनको भी पता है कि कैसे इवेल्युएट करना है ना, पहले से डे 1 से, कि मैंने एक प्रोजेक्ट वर्क उनको दिया है, ग्रुप असाइनमेंट दिया है. सो ईच एंड एवरीवन इज आल्सो नोइंग दैट व्हाट आर द इवेल्युएशन क्राइटेरिया, है ना. सो वो उनको क्या करता है, ऐसी चीजें करने से, हियर द साइकोलॉजी इज रिलेटेड, काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली गिव्स देम द इनर मोटिवेशन and they themselves engage in the learning process, है ना. So student might be encouraged to learn more deeply rather than simply like giving the assignment, है ना. And such kind of thing building up their understanding of not only learning process but also the evaluation process rather than just their like their knowledge of the fact, है ना. So gaining an insight into their own approach to an assessment task in comparison to their peers. Okay, किसी को कोई डाउट है, बोलो. डाउट नहीं, एक चीज ऐड करनी थी. आपने जो बोला ऑथोरिटी, तो उसमें एक फ्रेज, उसमें एक इडियम है, विद अ ग्रेट ऑथोरिटी कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑथोरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, दे मतलब अपने पोटेंशियल दे फाइंड आउट और फिर और अच्छे से वर्क करते हैं, है ना. और मैम यस रिंकी, प्रैक्टिकली मेरे को पूछना ये है कि जैसे हमने जो पियर्स असेसमेंट करते हैं उनको तो सिर्फ ग्रेडिंग से ही होता है, क्योंकि जो मार्क्स वो लिख देते हैं नोटबुक में, उन्हें ये थोड़ी पता चलता है कि बच्चे मतलब सामने वाले को क्या प्रॉब्लम आ रही है. नहीं समझो, इसीलिए ना टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको पीयर असेसमेंट कहाँ पे यूज करवाना है. ओके. बिकॉज टीचर नीड टू सेट दी क्राइटेरिया. वहां पे टीचर्स ना क्राइटेरिया जो सेट करती है, जैसे कि तो वहां पे दे यूज टू गिव देम द चेकलिस्ट. ओके, चेकलिस्ट, क्राइटेरिया, चेकलिस्ट या रुब्रिक्स, जिसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. मेनी ऑफ यू मे बी नो अवेयर ऑफ द रुब्रिक्स, जिसमें एक डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखा होता है कि जैसे कि बहुत सिंपल सा है, लैंग्वेज स्टूडेंट्स आर वेरी वेल अवेयर कि मुझे रीडिंग स्किल बच्चे का जज करना है, तो हाउ विल आई जज.
हार्ड मैम, on वर्ड्स the को basis of इजीली, हाँ, pronunciation, फिर प्रोनाउंसिएशन, Only pronunciation, fluency. No, fluency. ma'am, और There are भी list. There are the list of the criteria ना. यस मैम, On the vocabulary. basis of that, Yes. है ना. जैसे कि कुछ बच्चों का प्रोनाउंसिएशन सही जा रहा है लेकिन बहुत अप टू डेट नहीं है, तो वहां पे हम लिखेंगे कि यस, इन सम ऑफ द वर्ड्स योर प्रोनाउंसिएशन इज गुड बट स्टिल यू नीड टू इम्प्रूव ऑन सम ऑफ द वर्ड्स, है कि नहीं. तो वहां पे यस सिर्फ मैम, यही नहीं होता है ना. और एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे जो टेस्ट होते हैं, ऐसे जो हम असेसमेंट यूज करते हैं, वहां पे सिंपली ग्रेड नहीं होता है, यस और नो, बट जहाँ पे यस मैम, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ना ब्रॉड में डिस्क्राइब किया होता है, और ईच इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जिसको ज्यादातर हम रुब्रिक्स बोलते हैं, है ना. ओके, है ना. तो वैसे, और जैसे बच्चों को भी समझ में आएगा कि ऐसे काम किया तो ऐसे मार्क्स मिलते हैं, तो वो पीयर असेसमेंट के साथ साथ खुद का भी असेसमेंट कर सकते हैं. क्लियर. सो वी आर शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम. यस. ओके मैम, कैन वी से दैट कि पीयर असेसमेंट डीमोटिवेट भी करता है बच्चों को, उसके सिर्फ बेनिफिट हो ऐसा जरूरी है? बेनिफिट है, डीमोटिवेट कैसे करेगा रिंकी? मैम, डीमोटिवेट इन द सेंस, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को असेस किया, फ्रेंड नहीं कलीग, क्लासमेट, फॉर एग्जांपल वो मेरी फ्रेंड नहीं है, मैंने हाँ, असेस हाँ, किया, बट yes. वो, हाँ, जो भी क्राइटेरिया थे मैंने वो लगाए, बट उसके बाद भी मैम जैसे मेरी फ्रेंड नहीं है वो, तो थोड़ा तो मैं वो कर सकती हूँ ना, उसके साथ अनफेयर हो सकती हूँ. रिंकी जरा खुल के बोलो, खुल के बोलो, क्योंकि इसी में मैम, से आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ. आपका मुझे मैम समझ में आ मेरा, गया. हाँ हाँ मैम मेरा ये है कि जैसे इनफॉर्मल पीयर असेसमेंट हुआ मेरा, मतलब कर रही हूँ मैं अपने हाँ, फ्रेंड, अपने कलीग का, तो हाँ. वहां तो हो सकता है मैं पर्सनल ग्रेजेस भी निकालूं, तो वो डीमोटिवेट हो सकता है सामने वाला उससे. अच्छा, पर्सनल ग्रेजेस निकालना है ना. ये सब हाँ आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सी, मैम, पीयर हाँ, असेसमेंट का, वेट रिंकी, उसी में आंसर है. यस मैम, पीयर यस मैम, असेसमेंट में अरे इतने सारे मिसकंसेप्शन है इन असेसमेंट फॉर लर्निंग. और जैसे कि आप लोग अभी कैसे सोचते हो, क्योंकि आप लोग जो प्रोसेस से आए हो, मेनली दैट वाज ग्रेड ओरिएंटेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड प्रोसेस. एम आई राइट और रॉन्ग? यस मैम, है ना. तो बच्चे उस तरह से ट्रेन हुए ही नहीं है कि वो खुल के फेयर व्यू दे सके, है ना. तो यस मैम, हम जब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इनकी असेसमेंट में जब होता है, तो समवेयर अदर डेवलपमेंट लाइक द इमोशनल डेवलपमेंट, फिर जो हम बात करते हैं कि ऑनेस्टी, वैल्यूज, ये सारी चीजें Yes, हम अलग से बैठ के पढ़ाएंगे बच्चों को, लेक्चर लेंगे इसके साथ हम नहीं, वो इसी के साथ इनकॉर्पोरेट होता है. तो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ऐसी प्रैक्टिस होती है ना, नाउ रिंकी Yes, यू थिंक इन अ वे कि अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से यही प्रैक्टिस रहती है, जहाँ पे पीयर्स आर आल्सो इन्वॉल्व, स्टूडेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन असेसमेंट प्रोसेस, डोंट यू थिंक दैट उनका मोरल ज्यादा होगा, yes ma'am, उनकी वैल्यू yes ma'am, सिस्टम अपर साइड होगी, yes ma'am, they can understand that responsibility, the word yes ma'am, responsibility, the ownership which the teacher is sharing with the students, yes ma'am, है ना. अभी आप लोग किस तरह, आप लोग ना अपने, जैसे कि मुझे भी अगर बोला जाए तो मैं भी अपने एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने क्या एक्सपीरियंस लिया है स्कूलिंग में, हमको कहीं पे ऐसे इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, नो वेयर वी वेर इन्वॉल्व. क्लास में 2 एग्जाम होती थी, है ना. तो हमको yes, ये सारी चीजें बाहर लाना, और वहां पे टीचर्स का तो रोल होगा ना. ऐसा तो नहीं है Yes. टीचर ने असाइन कर दिया, उसका ड्यूटी खत्म. इट इज नॉट लाइक दैट कि भैया मुझे अपना टाइम बचाना है तो दे दो पीयर असेसमेंट. मतलब मैम टीचर को भी जो है बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट करनी चाहिए, इनकलकेट करनी चाहिए, क्योंकि पीयर असेसमेंट देने से पहले टीचर को उनका पूरा एक ओरिएंटेशन शुरू से करना पड़ता है ना. ठीक है. और आप जहाँ पे आप बात कर रहे हो रिंकी डीमोटिवेशन की, तो कुछ ना yes कुछ तो ma'am, ऐसा रहेगा, है ना. हाँ, लेकिन वहां पे रोल किसका होगा? टीचर्स का.
है कि नहीं? Yes, ma'am. The main purpose of doing peer assessment is that making our students enable to assess each other, to provide the constructive feedback. वो कैसे provide करनी है उसको भी हमें उनको orient करना पड़ेगा, है ना? Yes, ma'am. और जब वो चीजें करते हैं ना, see I am sharing one experience. Last year we went to, like with the B.Ed students, first year B.Ed student, we went to डायट का एक इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस का फेयर था बड़ौदा में, जहाँ से बहुत सारी प्राइमरी स्कूल के टीचर आए थे। वहां पे एक सर का स्टॉल था, उनका बहुत इनोवेटिव आइडिया था एंड वो सही में अपने असेसमेंट में यूजफुल हो सकता है। व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया, बच्चों को बोला कि एसएस पढ़ाते थे वो बच्चे, वो सर, तो उन्होंने बच्चों को बोला कि कल टेस्ट लेना है, टेस्ट पेपर आपको बनाना है। टेस्ट पेपर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? बच्चों को दे दी। बच्चों को क्या होगा बोलो, बच्चे क्या करेंगे? मैं अभी आपको बोलूं कि असेसमेंट और लर्निंग का पेपर आपको बनाना है, तो क्या करोगे आप? मुझे जो आता है मैं वही क्वेश्चन हेलो, हाँ वही। सबके फुल मार्क्स। हाँ कुमार आदर्श, सबके फुल मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन आएगा मैं वही दूंगी। ठीक है, आपको मैम बोला तब तो है यही करेंगे ना हम। 50 मार्क्स का बनाना है। मैम पहले मैम तो तब तो हम देखेंगे यही कि करेंगे ना। कंटेंट है क्या। क्वेश्चंस बनाए। मैम उस टाइम हम सर की कॉपी करेंगे, जैसे सर बनाते थे वैसे ही मैं खुद बना के प्रेजेंट करूंगी, क्योंकि उस टाइम पे चिल्ड्रन जो है वो ऑलवेज कॉपी देयर एल्डर्स। अगर सर मेरे ऐसे पेपर बनाते 5 मार्क के एमसीक्यू रखे, फिर 5 मार्क के फिलिंग द ब्लैंक्स रखे, तो फिर मेरा भी यही होगा कि मैं पहले 5 मार्क के एमसीक्यू बना रहे, फिर नीचे 5 मार्क के ट्रू और फॉल्स होंगे। सेम वे वी विल मिमिक आवर एल्डर। ओके, फिर मैम अगर मेरे को चांस मिलेगा तो मैं अपने जो सारे जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ मिलके जो है पेपर बनाऊंगा, ना कि इंडिविजुअली। हम जो है टास्क जो है इकट्ठा कर देंगे। ओके ओके। सबसे पहले जैसे कि एमसीक्यू बनाना है ना, चलो हम मरियम का ही ले लेते हैं एग्जांपल। आप फ्रेम करो एक एमसीक्यू, मैं अगर आपको 10 एमसीक्यू फ्रेम करने को दूंगी तो आप राइट आंसर रॉन्ग आंसर ढूंढोगे, हाँ है ना? नाउ तो थिंक अपनी खुद कि की बहुत सारे लर्निंग बच्चे, होगी। खुद की लर्निंग भी होगी ना साथ में। बहुत सारे बच्चे को तो पता ही नहीं है कि राइट आंसर क्या है, रॉन्ग आंसर क्या है। वो सर का एक्सपेरिमेंट जो सर ने किया था ना, वो वही था। उन्होंने एसएस का पेपर बच्चों को बोला कि आपको निकालना है 20 या 30 मार्क का। पैटर्न बोल दिया होगा सर ने, ठीक है, लेकिन उससे हुआ क्या? सर वो शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस कि बच्चे पेपर निकालने के लिए भैया उनको पहले कंटेंट तो पढ़ना पड़ेगा एक बार। एग्जैक्टली मैम। मैम ये चीज हमारा स्कूल यस मैम, है ना, वो कंटेंट तो पढ़ना पड़ेगा। सिंपली अगर मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगी तो बच्चे कंटेंट पढ़ के नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, बच्चों को असेसमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व किया, है ना? तो बच्चे जो पेपर बनाया ना, तो बच्चे वो चैप्टर पढ़ के फिर जो जैसे कि 5 मार्क का बनाए, फिर आप रखो आपको जो आता है। लेकिन आप यू थिंक ऑफ द सिचुएशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको वो चैप्टर पढ़ा भी नहीं है। नाउ दे विल रीड दैट चैप्टर, है कि नहीं? तो असेसमेंट फॉर वो बच्चे जो हम पीयर असेसमेंट की बात करते हैं, वो तो चलो हम उसको थोड़ा उसको अगर मैं सर के एक्सपेरिमेंट को अपने वे में ले लूं, तो सर अगर पहले से उनको पूरा टास्क, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पीयर असेसमेंट, है ना, या जिसको बोलते हैं हम सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, या लेकिन उसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा। बट ऐसी चीजें करने से क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं लर्निंग टेक प्लेस होती है ना? जैसे कि टीचर ने हम हाँ, if the teacher is giving them the like the criteria, evaluation criteria, है ना, तो वो दे रही है, बच्चे वो पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है, उनका वहां पे लर्निंग हो रहा है।
है कि नहीं? क्लियर अप टू दिस? Yes, Is ma'am. there any doubt? Yes, ma'am. No, And ma'am. peer ma'am. मैम ये जो Yes. आपने ऐसे सर बोला वो हम ऐसे हमारे स्कूल में भी ऐसे सर ऐसे ही करते थे। हाँ, एक्चुअली पर उन्होंने जो बोला ना, उन्होंने पूरा 50 एक, क्वेश्चन हमें निकालने होते थे। हाँ, तो वो एक्चुअली उनका एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल था बिकॉज द वे ही वाज प्रोड्यूसिंग द डेटा ना, तो बच्चे जो एसएस में शुरू में ध्यान ही नहीं देते थे, इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे, ऐसी सारी चीजें करने से क्या होता है, बहुत तरीके से फायदा होता है। एक तो बच्चों को क्या लगता है कि दे आर द पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सबसे पहला ये, तो उससे ना कहीं उनका एक इनर मोटिवेशन बढ़ता है कि दे आर नॉट निग्लेक्टेड, उनमें खुद में एक आत्मविश्वास आता है। ट्रू है ना? और ये सारी जो चीजें, मोटिवेशन देन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उनको लर्निंग को फैसिलिटेट करती है कि नहीं? ठीक है, यस मैम। सो आज यहाँ तक रखे पीयर असेसमेंट। होप यू Bhumika डोंट। ma'am, remind Yes. you for attendance. Yes, thank you Annapurna, I have downloaded. Okay. So there is no doubt about Hello. Yes, मैम। नाम बोलो, नाम प्लीज। हाँ, वृत्ति। हाँ बोलो वृत्ति। वो मतलब जब मैं स्कूल में थी ना 12th स्टैंडर्ड में, तो सर हमें क्या करते थे कि होमवर्क देते थे, फिर देते थे कि बेंचेस वाइज अगर है तो ये 4 बेंच के जो जितने भी स्टूडेंट्स है वो होमवर्क उन्होंने मतलब प्रॉपर किया है कि नहीं, वो कोई भी एक स्टूडेंट मतलब रखते थे, ऐसे को चेक कर उनको मतलब दूसरे दिन चेक करना होता था, और फिर उसमें से ही आपको मतलब कोई स्टूडेंट कोई जो मतलब अच्छा लगे वैसा क्वेश्चन बना के पूछने का। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। हेलो। हाँ यस। हाँ तो फिर उसका क्वेश्चन मतलब वही कंटेंट में से पूछना रहता था, मतलब स्टूडेंट्स को वो बेंचेस में से, और ऐसे तो इसे भी पीयर असेसमेंट कह सकते हैं। बट पीयर असेसमेंट में ज्यादातर क्या होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगी कि हर एक चाइल्ड, हर एक स्टूडेंट शुड बी इन्वॉल्व इन पीयर असेसमेंट। ऐसे नहीं है कि आप क्लास के जो ब्राइट बच्चे हैं उसको ले लो और उनसे असेसमेंट करवा दो, देन देयर इज नो यूज ऑफ पीयर असेसमेंट। ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड बी इन्वॉल्व इन पीयर असेसमेंट, है ना? तो पीयर असेसमेंट में ज्यादातर हम स्मॉल ग्रुप में एक्टिविटी, उनको स्मॉल ग्रुप बना दो या लार्ज ग्रुप असाइनमेंट दो और उन्हीं से असेस करवाओ, है ना? सो ईच एंड एवरीवन शुड बी इन्वॉल्व। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये जो सारी प्रैक्टिसेस आप जो शेयर कर रहे हो, they are kahin na kahin the part of peer assessment, not exactly in the formal way but in a informal way. Okay, thank you ma'am. Okay, so can I end meeting now or is there any doubt? No ma'am. No ma'am, no doubt ma'am. Okay, so I am ending the meeting here. Wednesday मिल रहे हैं, ठीक है? मैम एक क्वेश्चन है, ओपन बुक टेस्ट किसका एग्जांपल है? ओपन बुक टेस्ट किसका एग्जांपल है? पीयर असेसमेंट का तो नहीं है, क्योंकि वो भी एग्जाम होती थी ओपन बुक टेस्ट। कोई भी एक चैप्टर सर बोल देंगे और उसी टाइम पे वही एग्जाम होगी उसी चैप्टर की। इट्स अ टाइप ऑफ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट का नहीं है वो। हाँ तो मेरा क्वेश्चन वही है कि किस टाइप के अंदर आएगा? It is also not the self-assessment. It depends for which purpose they are doing the open book examination, because open book examination is very broad concept. तो जैसे इंटरनल टेस्ट होती है, इंटरनल टेस्ट की जगह हमारे ओपन बुक टेस्ट एग्जाम लेते थे। हाँ, ओपन बुक एग्जाम मरियम तेरा आंसर नेक्स्ट दूंगी, बिकॉज इसके लिए यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन, है ना? जैसे कि ये बुक मेरे पास है और मैं लेके बैठ गई और आंसर दिया, क्या क्वेश्चन दिया तो फिर आंसर भी है टू सर्च। हाँ,
ओपन बुक एग्जामिनेशन बनाना ना एक टीचर्स के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का टास्क होता है, एंड दैट्स द पार्ट ऑफ असेसमेंट, है ना, वन काइंड ऑफ असेसमेंट, बट इट्स नॉट द पीयर असेसमेंट और द सेल्फ असेसमेंट, है ना. Open book examination, grading system, these are the innovative concepts in the evaluation process, है ना. और मेनली जो ओपन बुक एग्जामिनेशन होती है उसका मेन पर्पस ये है कि स्टूडेंट को जो फियर फैक्टर होता है एग्जाम का वो थोड़ा रिड्यूस करना, और ज्यादातर ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. इट इज चेक योर अंडरस्टैंडिंग और देयर एप्लीकेशन बेस्ड के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर बुक में ऐसा लिखा है, डेफिनेशन दी है, तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे राइट डाउन द डेफिनेशन. हाँ हाँ, in between the words. हाँ, yes. So there the main purpose of open book examination is quite different, है ना. It's like innovative way that nowadays many teachers are using, but mainly ओपन बुक एग्जामिनेशन में एक चीज तो ध्यान रखो कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का बहुत कम वहां पे होता है. जो स्टेट वे बुक में से निकलते हैं वो वाले क्वेश्चन नहीं होंगे. मेनली चेक्स द अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन लेवल. क्लियर? Yes, ma'am. Actually, Mariam, open book examination to explain this concept, it takes 2 to 3 classes. Oh. It's not like the concept which I can explain within 5 minutes. क्योंकि ओपन बुक एग्जाम का भी बहुत मिसकंसेप्शन होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो उसको समझाने के लिए भी मुझे 3 क्लास चाहिए. मैम सिर्फ सिंपल ही होता था कि चैप्टर खत्म होगा, फिर इंटरनल्स आएगी, हमारी बुक्स होगी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर हिस्ट्री या सिविक्स. कि ये बुक ओपन करनी है, उसका चैप्टर नहीं बोलेंगे पर बोलेंगे कि 1 to 4 चैप्टर हो गए, 1 to 4 चैप्टर के बीच में से कोई भी 10 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा करके था. हाँ. ओके, तो वो जो ना रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, जहाँ पे कौन सी बुक बच्चे ओपन कर सकते हैं वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है फ्रॉम द साइड ऑफ एसेसर, है ना. और ज्यादातर ओपन बुक एग्जामिनेशन ना आप फॉर्मेटिव में भी यूज कर सकते हैं और समेटिव में भी यूज कर सकते हैं, दोनों में यूज हो सकता है. यस मैम. ठीक है, डन. ओके, चलो बाय. गुड, यू पीपल आर मोर इंटरएक्टिव. अभी मुझे भी क्लास लेने में मजा आता है. थैंक यू मैम. ओके, बाय.